Hello learners, welcome back to my science class, and once again this is Archana, your science teacher. So students, in today's class we discuss our lesson plan number 2, that is human circulatory system, and lesson plan number 3, that is heartbeat and pulse rate from the block circulation in humans. And the aim of today's topic is to understand the process of blood circulation through the various parts of the human circulatory system, and to understand the relationship between heartbeat and pulse rate and their significance in our body. So let's start our today's class from lesson plan number 2, human circulatory system. So first of all, you just think that, have you seen a pump forcing water into pipes? And what is the function of a pump? So the pump help to push the water with force into the pipes, which help in distributing water. पंप से हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं. पंप क्या करता है, वो वाटर को पुश करता है so that it distributed through the outside the pump. Clear? So similarly, in our body also we have a similar system that is known as the circulatory system. And circulatory system is helping transporting materials in our body. Clear? And the pump like structure in our body is known as heart. और हार्ट कहाँ पे होता है? हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स विद इट्स लोअर एंड टिल्टेड टू द लेफ्ट. क्लियर? एंड द नेटवर्क ऑफ पाइप्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन थ्रू द बॉडी एंड कैरी द ब्लड, दे आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है. हार्ट क्या करता है? हार्ट का फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करेगा, और ब्लड किससे कैरी होता है? थ्रू द ब्लड वेसल्स. क्लियर? And there are 3 types of blood vessels in our body. The first one is arteries, veins and capillaries. Now we discuss the properties of these blood vessels. As I told you that arteries, veins and capillaries, they have a thin, thick and extremely thin walls. Arteries, they are thick walled. Veins, they have thin wall, and capillaries, they are extremely thin walls. Clear? Now what is the function of these 3 blood vessels? Arteries are thick-walled blood vessels. They are present deep under our skin and cannot be seen easily. Arteries जो है easily हम उसको देख नहीं पाते. कहाँ पे होती है? वो हमारी स्किन के जस्ट अंडर, डीप अंडर होती है, बहुत ज़्यादा अंदर होती है. They carry the blood from the heart to different parts of the body. Arteries का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड कैरी करती है हार्ट से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. क्लियर? वेन्स, they are thin-walled blood vessels. They can be easily seen under the skin as blue-colored vessels because they are superficially located. They carry blood from different parts of the body to the heart. Veins को हम easily देख सकते हैं. For example, अगर आप अपने hand में देखोगे, see in my hand, these are the veins which is easily seen by us. Clear? ये जो veins हैं हमारी easily seen हो रही है. Understand? Now इनका function क्या होता है? They carry the blood from different parts of the body, और ये कहाँ लेके जाती है? हार्ट के पास. यानी कि आर्टरीज जो है वो क्या करती हैं? वो ब्लड लेती हैं फ्रॉम द हार्ट और कहाँ लेके जाती है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में. और वेन्स का क्या काम होता है? दे कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. क्लियर? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वेन्स हैव स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड वॉल्स. अब वेन्स कैरी कर रही हैं ब्लड को, तो जो वेन्स हैं वो दोबारा से वापस पीछे की तरफ जो है उसके अंदर ब्लड ना बैक फ्लो हो, तो उनके पास क्या होता है? दे हैव ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं वॉल्स. और वॉल्स ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज, दे आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. दोनों आर्टरीज को और वेन्स को कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरीज कनेक्ट करते हैं. क्लियर? Capillaries, they help them to exchange material like oxygen, digested food, carbon dioxide and urea between the blood and cell by diffusion. Capillaries इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का वर्क करती है जो कि बहुत सारे मटेरियल्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करती है. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है. सो एज वी स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स, सो there are two words. One is oxygenated blood and deoxygenated blood. So there is a confusion. Oxygenated blood कौन सा होता है? Blood in which, blood that consists more oxygen and less carbon dioxide. That is known as oxygenated blood.
and the blood which consists less oxygen and more carbon dioxide, it is known as deoxygenated blood. Clear? I repeat, oxygenated blood क्या होता है? Oxygenated blood के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो कम होगी. इसके ऑपोजिट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लेस ऑक्सीजन होगी लेकिन मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगा. क्लियर? नाउ वी स्टडी अबाउट कि कैसे ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं. अब कौन से ब्लड को सर्कुलेट करेंगी? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. क्लियर? सो पहले द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू द हार्ट बाय द वेन्स. सो सबसे पहले क्या वर्क होता है? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू हार्ट बाय द वेन्स. वेन्स के थ्रू आता है. कहां पे आता है? हार्ट के पास आता है. क्लियर? द हार्ट पंप्स दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. अब हार्ट का क्या फंक्शन होगा? ये ब्लड को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि वेन्स लेके आए हैं उसको पंप करेगा एंड where it takes up the oxygen from the lungs through capillaries and become oxygenated. क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले हार्ट ने पंप किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास. देन दिस ब्लड, जो इस ब्लड के अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ऑक्सीजन है इसके अंदर. ऑक्सीजन को तो क्या करेगा? ये अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरीज एंड दोबारा से क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा. क्लियर? आया क्या था ब्लड यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड वाला. लेकिन ब्लड एब्जॉर्ब हो गया. किसने किया एब्जॉर्ब? सॉरी, ब्लड ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? यहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. नेक्स्ट, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. अब यही लंग्स के अंदर से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो रिटर्न हो जाएगा. कहां पर? दोबारा से किसके पास आ जाएगा? हार्ट के पास आ जाएगा. अब हार्ट क्या करेगा? अगेन, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप करता रहता है. अब इस ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा थ्रू द आर्टरीज. क्लियर? देन द सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड. अब दोबारा से जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, वो सेल्स इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वापस से इसके अंदर क्या मिक्स हो जाएगा? इट बिकम्स अगेन डीऑक्सीजनेटेड. देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन रिटर्न टू द हार्ट बाय द वेन्स और फिर यही प्रोसेस अगेन चलती रहेगी. क्लियर? तो सबसे पहले आई रिपीट, क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट से कहां गया? हार्ट के पास थ्रू द वेन्स एंड देन द हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू इन द लंग्स. क्लियर? नाउ ब्लड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑक्सीजन. कहां पे? लंग्स के अंदर. और दोबारा थ्रू द कैपिलरीज इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. फिर हार्ट के पास आया, हार्ट ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास सेंड किया और थ्रू द आर्टरीज, और उसके बाद ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है क्योंकि इसके अंदर मिक्स हो गया. अगेन फिर ये कहाँ आता है? वापस से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर. दोबारा फिर ये वेन्स के थ्रू हार्ट के पास जाता है. तो ये प्रोसेस चलती जाती है इसी तरह. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. यू हैव टू लर्न और practice of this diagram also. Clear? Now the question arises that what can happen when the arteries get blocked? How can this be prevented? क्या होगा अगर arteries block हो जाएंगी तो? So if the arteries get blocked by the accumulation of the substance called cholesterol present in oily and fried foods, यानी कि आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई, कैसे ब्लॉक होती है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? इफ वी ईट ऑयली एंड फ्राइड फूड, इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू मूव इजीली इन द आर्टरीज. अगर जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में बहुत आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा और ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई कंप्लीट ब्लॉकेज स्टॉप द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट. अगर ब्लॉकेज होगा यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लॉकेज से हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा. इट लीड्स टू द हार्ट अटैक. इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? बाय अवॉइडिंग ऑयली एंड फ्राइड फूड्स, ईट हेल्दी food just like fruits and vegetables, and a regular exercise routine can also be prevent the risk of heart attacks. So students, this is all about of this topic. Now we discuss our next lesson plan, that is heartbeat and pulse rate. So as I told you that human heart is a muscular organ. Clear? It beats rhythmically. हमारा जो heart है वो एक तरीके से it is a muscular organ और ये rhythmically क्या करता है? बीट करता रहता है, पंप करता रहता है बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. सो द प्रिंसिपल इन विच द हार्ट इज फंक्शनिंग, दैट इज
contraction and relaxation of muscles. Now what do you mean by heartbeat? Heartbeat, one complete contraction and relaxation of heart is known as heartbeat. Clear? I repeat, one complete contraction and relaxation of a heart is known as heartbeat. And how many times the number of heartbeats are there in 1 minute? So the number of heartbeat in 1 minute is called heart rate. The heart rate of a healthy adult is 70 to 80 beats. Clear? A healthy human heart beats 70 to 80 times in 1 minute. That is known as heart rate. And if the heart rate is increases, कब increase होता है ये? When we run exercise. So there is a throbbing sensation in the arteries that is known as pulse. I repeat, pulse क्या होता है? The heart rate increases when we run on exercise. So the throbbing sensation in the arteries is known as pulse. It can be felt by a place where the arteries are close to the skin surface like wrist. अगर आप अपनी wrist पे हाथ रखो तो आप जैसे फीवर होता है जब चेक करते हो, see in the picture, जैसे ही आप ऐसे हाथ रखोगे आपको आपकी पल्स जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाएंगी. So what do you mean by pulse? The throbbing sensation in the arteries. Clear? The number of pulses in 1 minute is called pulse rate. Number of pulses in 1 minute is called pulse rate. So doctor listen to the heartbeat by an instrument called stethoscope. जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपका जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट है उसको सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? दे यूज स्टेथोस्कोप. क्लियर? Now the question arises that how is heart rate related to the pulse rate? So the heart rate is the same as pulse rate. जितना heart rate होगा उतना ही pulse rate होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हार्ट बीट जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे बेस्ड होता है. क्लियर? whenever the heart beats it causes the blood to flow with the pressure in the arteries. जैसे ही हार्ट बीट करता है वैसे ही क्या होता है? प्रेशर आता है आर्टरीज के अंदर, ब्लड फ्लो हो रहा है, और जैसे ही आर्टरीज के अंदर प्रेशर आएगा तो एक थ्रॉबिक सेंसेशन होगी, मूवमेंट होगी आर्टरीज के अंदर, वो पल्स हो जाएगी. सो जितना ज्यादा हार्ट बीट जनरेट करेगा पल्स को उतना ही पल्स रेट जो है वो इक्वलाइजेशन हो जाएगा हार्ट बीट और पल्स रेट का. सो पल्स रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. हार्ट रेट इंडिकेट करता है whether the heart is working properly or not. Any change in the heart rate indicates ill health like a fever or infection. अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है या हार्ट रेट बढ़ गया है, इट मीन्स आपको फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और डिजीज हो सकती है. दैट इज वाई वी शुड रेगुलरली चेक और मॉनिटर अवर हार्ट एंड और पल्स रेट. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइज एट हाउ इज द हार्ट रेट मॉनिटराइज्ड इन एन ईसीजी. ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. So electrocardiogram or ECG, it is a special test to determine the rate and regularity of the heartbeat. ये आपको ये बताएगा आपका हार्ट जो है वो रेगुलरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. It detects the activity of heart through special electrical wires called electrodes. अगर आपने कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को किसी को देखा है करते हुए या कहीं देखा, हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, तो उसमें आपको एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड होता है और ये आपकी एक्टिविटीज को बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हार्ट जो है वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है. दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं. दे आर अटैच्ड एट स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द बॉडी. दीज वायर्स दे कनेक्टेड टू द मशीन्स, और यही मशीन जो है वो ट्रेस करती है आपके हार्ट के रिदम को ऑन अ ग्राफ पेपर. जैसे आप कभी मूवी वगैरह में देखते हो ना, यूं यूं करके रिदम्स लिखे आते, रिदम्स जैसे आते हैं. सो वो आपकी हार्ट रेट की पोजिशंस होते हैं या उसके एक्टिविटी उसको शो करता है. क्लियर? It help in detecting irregularities in the heart rate which cannot be found by stethoscope. जो कि स्टेथोस्कोप से इजीली पता नहीं चलती, ये चीजें आपको इजीली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चल जाती हैं. So students, this is all about of this topic. I hope you all are understand. Thank you and have a nice day.